So let's continue it. We left on slide number 11. So character without action will not achieve the end of tragedy. So it means that plot is more important than all other elements, even on more important than characters. And what is plot? I have just mentioned plot is the sequence of the story. Then his theory of imitation. तो प्लॉट के हवाले से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. Remember, this session has been, these both sessions have been arranged for solving your problems through this revision. If you have any problem, so you can ask me. I will inshallah try to solve your problem, because next week, same day, you will have your midterm exams and you will be asked questions related to these two critics. No problem regarding plot. फिर हमारे पास है theory of imitation. So Plato was the first person to use the word imitation in connection with poetry, and Aristotle breathed into it a new and definite meaning. Plato, remember, was the teacher of Aristotle. He was also philosopher, but first he was poet and then he became philosopher. And why he criticized poetry, I have also discussed this thing with you earlier, and you can find this thing in the lectures as well. तो प्लेटो ने फर्स्ट टाइम यूज किया था इमिटेशन का, and he only called poetry a mere imitation, but Aristotle defined this imitation in a proper manner, and he has given a definite meaning to this imitation. After this, poetic imitation is no longer considered to be only an act of copying, but rather it is considered to be an act of imaginative creation. एरिस्टोटल ने जिस अंदाज से इसको डिफाइन किया, उससे ये चीज क्लियर हुई कि पोएटिक इमिटेशन इज एन एक्ट ऑफ इमेजिनेटिव क्रिएशन through which the poet draws his material from the phenomenal world and then makes something new out of it. ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई चीज एकदम नई क्रिएट कर लें. We have something to copy first. पहले हम किसी चीज को कॉपी करते हैं and then we add something that particular thing. We add something to that particular thing and then we create something new. तो प्लेटो एरिस्टोटल ने ये कहा कि must have something, you must have a model before you. So when you see the model, what happened? New ideas come to your mind, and then you add those ideas to that particular model and you create something new. So this is called imitation. So Plato defined imitation in a negative way, and he defined imitation in a positive and you can say good way. And that is why Aristotle says imitation is the common basis of all the fine arts. जितने भी fine arts है, उन सब का जो common है वो क्या है? Imitation है. They all imitate. They all imitate. Plato had equated poetry with painting. Plato ने poetry को painting के साथ जो है compare किया. Whereas Aristotle equated it with music. Aristotle ने poetry को music के साथ compare किया. It no longer remains a mere servile representation of the surface or the appearance of things, but in its theory, it becomes a representation of the passions and emotions of men, which are also imitated by music. So the medium of the poet and the painter are different. दोनों का जो medium है वो दोनों का different है. Poet का medium और painter दोनों का medium अलग अलग है. The one imitates through forms and color. एक जो है forms और color के जरिए imitate करता है वो है painter, and the other through language, rhythm and harmony, and the second one imitates through language, rhythm and harmony, and this is what? Poet. The musician imitates through rhythm and harmony. Musician भी rhythm और harmony के जरिए imitate करता है. इसीलिए Aristotle said that poetry is nearer to music than painting. तो यहाँ भी वो अपने टीचर से इख्तिलाफ करता है और वो बताता है कि भाई poetry is not nearer to पेंटिंग. वाई? बिकॉज द मीडियम ऑफ पेंटिंग जो है वो अलग चीज़ है. पेंटिंग में कलर और फॉर्म्स इस्तेमाल की जाती है, जबकि पोइट्री में लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, रिदम इस्तेमाल किया जाता है, हारमोनी इस्तेमाल की जाती है. एंड दीज थिंग्स यू कैन फाइंड विद म्यूजिशियन, एंड दैट इज व्हाई ही सेड दैट पोइट्री इज नियर टू म्यूजिक देन पेंटिंग. ठीक है, तो मैंने आपको ब्रीफली बताया है थ्योरी ऑफ इमिटेशन. अगर इस पर कोई सवाल आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. बाकायदा इन सब पर एक एक क्लास हुई हुई है, एंड यू मस्ट लिसन टू द वीडियो अगेन.
Shall I proceed to the next one because time is very short? Yes, आगे बढ़ें. Yes, shall we proceed to the next one? Is this clear? Are you getting my voice clearly? कोई एक बंदा बोल दे बस. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है another very important topic, that is catharsis. What is catharsis? I have already defined catharsis. The end of a tragedy, the purpose of a tragedy is to bring catharsis. अगर ट्रेजेडी देखने के बाद, ड्रामा देखने के बाद जो है आपको मतलब आपकी फीलिंग्स बाहर नहीं आई और जो आपके इमोशंस है वो रिलैक्स नहीं हुए, इट मीन्स there is no catharsis and their tragedy is unsuccessful. So catharsis is a word of Greek origin which has three meanings: purgation, purification and clarification. इसके ये ग्रीक वर्ड है जिसके तीन मीनिंग्स है: purgation, purification, clarification. So Aristotle uses this word in the Poetics only once. उसने तो एक ही मर्तबा इसका इस्तेमाल किया है. But later on critics define it in their own ways, in different ways. So while dealing with the function of tragedy, Aristotle says only the following. So इससे यही कहा था कि through pity and fear affecting the proper catharsis or purgation of these emotions. But later on critics define in different ways. So किसी ने इसको pathological और purgation theory का, तो किसी ने इसको psychologically interpret किया, किसी ने इसको इथिकली अखलाकी ग्राउंड पर इसको इंटरप्रेट किया, तो किसी ने इसको प्यूरिफिकेशन रिलीजियस ग्राउंड पर इसको इंटरप्रेट किया, और किसी ने इसको क्लैरिफिकेशन थ्योरी यानी कि क्लैरिफाई कैसे करता है, किस तरह से इंसान को क्लैरिफाई करता है, उसकी थ्योरी पर इसको जो है. तो दीज आर डिफरेंट थ्योरीज विच यू शुड रीड, and you must have soft copy of what have of the handout which I have sent you. तो उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होगी, आप देख लीजिएगा उसको. ठीक है, these are different theories which Aristotle, which different critics have put forward regarding catharsis. तो बेसिकली कैथारसिस होता है क्या, मैंने आपको आई हैव गिवन यू सम जनरल एग्जांपल्स. जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी को दाना निकल आए, ठीक है, तो दाने के अंदर जब तक पस रहेगा तो उसे तकलीफ रहेगी, जब पस बाहर आ जाता है, सो दैट इज कॉल्ड कैथारसिस. Similarly, sometimes we are very sad, or you can say something we have in our mind and in our heart, and that thing, when it remains in our heart or in our mind, so we are very much depressed or we are very sad. So when we share it with somebody else, what happens? We have catharsis. We get release of that tension. So this is catharsis. If you don't share with somebody else, so what will happen? Internally, it will damage us, and there'll be a time will come when definitely it will do some serious damages. It will have, or we must have some serious damages due to that particular feeling. So catharsis means you are getting released, you are getting rid of that particular emotions or feelings or impulses. ठीक है भाई, तो जनरल चीज़ें आपको मैंने बता दी, इसके हवाले से आप मज़ीद डिटेल्स उसमें देख लीजिएगा. ओके, सो यू मस्ट नो थिंग्स जनरली. Any question regarding this? What is okay? इसके बाद then we have the next critic, and that next critic is Sidney. His apology for poetry, an apology for poetry, which he wrote. So the probably most important topic that we have in that particular book is objection raised by Stephen Gosson against poetry. So how Sidney replied, or how he replies to those objections raised by Stephen Gosson against poetry. तो पहले तो वो objections क्या हैं उसको हम देखते हैं. तो Stephen Gosson was a uh, Puritan, and Puritans were against poetry. So he raised these objections. Number one, poetry is only a waste of time. There are many other four objections were leveled against poetry. First objection is that poetry is only a waste of time. There are many other more fruitful branches of knowledge. A man might better spend his time in them than in poetry. तो उसने कहा कि ये तो सिर्फ वक्त का ज़ाया है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलूम हैं जिनमें इंसान अपना वक्त
लगा सकता गुजार सकता है और उससे फायदा हो सकता है. सेकेंड ऑब्जेक्शन क्या थी? इट इज द मदर ऑफ लाइज. पोइट अकॉर्डिंग टू स्टीफन गोसन, पोइट्स टेल लाइज. मदर ऑफ लाइज में सब झूठ का पलंदा है भाई, झूठ बोलते रहते हैं शायर, सच तो बोलते ही नहीं है. So second objection was that it is the mother of lies. Third objection that was raised against poetry is all species of poetry are infected with love themes. Species means kinds. All types or kinds of poetry are infected with love themes. इन्हीं के सब में आपको लव थीम्स मिलेंगे एंड अमोरस कंसीट्स और कंपैरिजन भी आपको मिलेंगे बहुत गैर अखलाकी, विच हैव अ डीमोलराइजिंग इफेक्ट ऑन रीडर, जो रीडर को डीमोलराइज करता है, यानी कि रीडर का जो हौसला पस्त करता है, उसको डीमोरल, उसका मतलब ये है कि मोरल ख़त्म करता है. इट इज़ इमोरल, ये गैर अखलाकी है. इट इज़ द नर्स ऑफ अब्यूज़, और ये गलत चीज़ों को जन्म देता है. इट करप्ट्स मैन एंड हैज़ एन इफेमिनाइजिंग इफेक्ट ऑन रीडर्स, ये इंसान को करप्ट करता है, इंसान को ख़राब करता है और उसके ऊपर इफेमिनाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि जनाना इफेक्ट इसको, यानी मर्द अगर जो है पोइट्री को सुनेंगे तो वो डरपोक कावर्ड हो जाएंगे और जनाना इफेक्ट उन पर आ जाएगा, यानी कि ख़वातीन की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो डरती वो होते हैं और इस तरह से मतलब ये कि उनके अंदर से उतनी बहादुर नहीं होती इस लिहाज से कि वो जंग के मैदान में इस तरह के मामलात में जाएं. सो अकॉर्डिंग टू Stephen Gosson, it corrupts men and has an effeminizing effect on readers. Number fourth one is that Plato had banished poets from his ideal republic. Plato ने तो अपने ideal republic से शायरों को निकाल दिया था, और प्लेटो एक नाम है, एक फिलोसोफर, एक बड़ा नाम है, and that is why he has referred to or he has given the reference. So these are the four objections which were raised by Stephen Gosson against poetry. And now Sydney will reply to these questions, right? So is this clear? ये जो चार objections है Stephen Gosson ने जो level किए थे. So if you have any problem regarding this, you can ask me. Okay, the next one, Sydney's reply to the first. Now first question, what is the first charge was that poetry is only a waste of time. So Sydney says that the first charge by saying that he has already proved that poetry is never a waste of time, nor is it a useless branch of knowledge, because Sydney's tried his best to prove that poetry is superior to other branches of knowledge. So he said that it is never a waste of time and it is not a useless branch of knowledge. The study of poetry is the most profitable exercise because it imparts delightful instruction and inspires men to virtuous action. क्या कहता है कि इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है. इट इम्पार्ट्स डिलाइटफुल इंस्ट्रक्शन, इससे आप सबक दे सकते हैं लोगों को, और यू कैन इंस्पायर पीपल टू वर्चुअस एक्शन, और लोगों को आप अच्छे कामों की तरफ उनको तरगीब दे सकते हैं. इन ऑल नेशन एंड लैंग्वेजेस इट हैज़ बीन द फर्स्ट लाइट गिवर टू इग्नोरेंस. फिर क्या कहता है कि तमाम जितने भी कौम है उनको आप उठा के देख ले, उनकी लैंग्वेजेस में देख ले, इट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट गिव लाइट to ignorance, यानी कि जो जहालत को ख़त्म करती है. Means in the very initial stage you can find this poetry that is that initiates knowledge, जिससे इल्म शुरू होता है. It has also been the first nurse to give milk to her children to enable them to feed afterwards on tougher knowledge, and it is the first step towards knowledge. और इल्म हासिल करने की जानिब ये पहला कदम भी है कि आप पोइट्री से स्टार्ट लेते हैं. So these are the arguments. और भी होंगे हैं इसके अलावा, तो ये उन्होंने in reply to the first objection kaha. Then his reply to second objection, what he says that all writers under the sun, the poet is the least liar. यानी कि तमाम राइटर्स में जो है झूठ सभी बोलते हैं, ठीक है, मुबालगा आराई करना और इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करना. सो दीज आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ लाई. सो इज दैट पोएट इज द लीस्ट वन, पोएट उन सब में कम है. व्हाई? बिकॉज पोएट्स डज नॉट say anything confirm, वो किसी चीज को कंफर्म नहीं करता. पोएट जस्ट गिव्स प्रिडिक्शन. कहता है कि एस्ट्रोनॉमर, ज्योमेट्रिशियन, हिस्टोरियन एंड अदर्स all make false statements, but the poet nothing affirms. पोएट किसी चीज को अफर्म नहीं करता and therefore he never lies, यानी को किसी चीज को कंफर्म नहीं करता. ये लोग तो कंफर्म करते हैं, पोएट किसी चीज को कंफर्म नहीं करता, इसीलिए पोएट्स नेवर टेल लाइज, वो झूठ ही नहीं बोलता, क्योंकि जब किसी चीज को कंफर्म ही नहीं करता तो झूठ थोड़ी, वो तो बताता है कि ये हो सकता और ये हो सकता था. लाइक दिस, he does not tell us what is or what is not, but what should be or what should not be.
So what he present is not fact but fiction embodying truth of an ideal kind. तो वो जो बताता है वो fiction होता है, ठीक है, that includes truth of an ideal kind, जिसमें एक ideal kind का truth होता है. So that is why according to Aristotle he does not tell lies. थर्ड ऑब्जेक्शन पे क्या कहता है, जिसमें वो कहता है कि इट इज द मदर ऑफ अब्यूज, तो इट इज इमोरल. सो ही सेज दैट पोइट्री डज नॉट अब्यूज मैन्स विट, इट इज मैन्स विट दैट अब्यूजेस पोइट्री. कहता है कि पोइट्री जो है इंसान की के लिए बुराई नहीं है, बुरी चीजें क्रिएट नहीं करता, कि खुद इंसान के अंदर बुरी चीजें जो पोइट्री को खराब करती हैं. अब इंसान ही पोइट्री लिखते हैं ना. People write poetry. If you write good poetry, so poetry will be good. If you write bad poetry, poetry will be bad. As we can see in modern world, there are many songs which are very vulgar. बहुत सारे गाने ऐसे हैं, songs are the form of poetry, remember, lyrical poetry. So there are many songs which are the language of those songs are very immoral and vulgar type of language. कुछ में तो बास औकात आपको you will find that there are some songs in which you will find blasphemous words as well, and of course some songs contain immoral words as well. So this is not the mistake according to Sydney of poetry. This is the mistake of a poet. This is the mistake of the one who has written this one. So he says that all arts and sciences can be misused for evil. तमाम जितने भी arts और sciences है सब गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, but it does not mean that they are less valuable when rightly used. तो ऐसा नहीं है कि वो फिर उनकी कोई अहमियत ही नहीं है. Why are you using it for the wrong purpose or evil purposes? Then he gives the example of a sword. फिर वो एक मिसाल जनरल से देता है, एक तलवार की मिसाल देता है. ज़ाहिर है उस वक्त तलवार थी, गोलियां तो थी नहीं, उस वक्त बंदूक तो थी नहीं. So he gives the example of a sword by saying that with a sword we may kill our father and with the same sword we may defend our prince and country. यानी कि एक तलवार है जिससे हम अपने बाप को भी कत्ल कर सकते हैं और उसी तलवार से हम अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, अपने बादशाह का दिफा कर सकते हैं. तो वो तलवार खराब चीज नहीं है, कौन है जो उसको यूज करने वाला है वो खराब हो सकता है. So this is the third object, reply to the third and fourth one, जिसमें इसने कहा Stephen Gosson said that Plato has banished poetry from his ideal state, so why should we should also do the same thing? So he says that he is confused about the last objection, and he says that Plato warned men not against poetry but against its abuse. Plato ने लोगों को इसके abuse के against जो है warning दी थी, not poetry. He said that poetry is not bad but poets are bad, who filled the world with wrong opinions about their gods. Plato's objection was directed against the theological concept, और उस वक्त के theological जो concept थे, his objections were directed against those concepts. Plato called poet a light, wing, and sacred thing, which reveals his attitude to poetry as well. So Sidney says that poets were not responsible for this sort of abuse because they simply imitate the practice or the point of view which becomes popular or fashionable. So Plato had banished the abuse of poetry, not poetry itself. This तरह से he has given replies to all four objections, right, one by one in an apology for poetry. So this is the most important discussion. Any question regarding this? इस हवाले से कुछ पूछना हो? After this, his views on contemporary tragedy, comedy, and tragic comedy. ये तीन किस्म के ड्रामाज हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी. सो ट्रेजिक कॉमेडी के हवाले से बताता है कि he defines tragedy, the ideal tragedy is an imitation of a noble action. He agrees with Aristotle in the representation of which it stirs admiration and commiseration, and teaches the uncertainty of the world and the weak foundation upon which golden roofs are built. So this is what he says about tragedy. So here he agrees with Aristotle. What Aristotle says, he also agrees that it is the imitation of a noble action, serious action. About comedy, what he says that it is an imitation. Comedy भी imitation है और tragedy भी imitation है. They both are imitation, but comedy is the imitation of the common errors of life. Errors of life, remember, which are represented in the most ridiculous and scornful manner, जो कि बहुत ही जलालत और जिल्लत आमेज तरीके से दिखाई जाती है.
Why? So the spectator is anxious to avoid such error himself, ताकि जो देखने वाले हैं वो इस तरह की गलतियों से बच सके अपने रियल लाइफ में. So this is comedy and the purpose of comedy. Yes, any question? Then Sidney talks about English dramas and he condemnation of tragic and comedy. वो इंग्लिश ड्रामास के बारे में बताता है और फिर कंडेम करता है अपने वक्त में जो ट्रेजिक कॉमेडी यानी कि ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिक्स करके कुछ राइटर्स ने पेश किया था. So what he says about English dramas, he says that they are neither true comedies nor true tragedies, disregarding both the rules of poetry and honest civility. So according to Greek, tragedy, there should be only tragedy. According, or if it is a comedy, if a play is comedy, so it should be only comedy. If a play is tragedy, so it should be only tragedy. Greeks were not in favor of both in one play. They were in favor of separate plays. So Sydney के बारे में कहा जाता है he died before Shakespeare's plays were shown on the stage, and it is said about Sydney that had he seen the plays of Shakespeare, he must have changed his views about English dramas, and he must have changed his views regarding tragic comedy. So tragedy is not tied to the laws of history, but it is certainly bound by the rules of poetry. Sidney strongly condemns tragic comedy of English dramatists by saying that in English plays, tragedy and comedy both are mixed together, and the mingling of tragic and the comic element weakens the tragic effect. तो उसका कहना यह है कि ये चीजें tragic effect को weak करती हैं, कम करती हैं. In a comedy, the action should be comic throughout, and similarly in a tragedy, it should be serious throughout. Any question? It's all if you have any question regarding this, you can ask me, please. Hello. Yes, any question regarding this? Then Sydney's concept of poetry and imitation, this is also very important. इसको भी ज़हन में रखिएगा poetry के बारे में Sydney क्या कहता है. Sydney says poetry is an art of imitation and its main function is to teach and delight. See, what is poetry? Art of imitation, and main function of poetry is to teach and delight. यानी कि teach भी करना है और delightful अंदाज में करना है. ये ना हो कि आप teach के चक्कर में जाओ और delight इसमें होना, and then it will not definitely serve its purpose. And imitation does not mean only copying or reproduction of facts. It means a representation or transmutation of the real and actual. So Sydney also here agrees with Aristotle that it does not mean only copy or reproduction of facts. It means to present something new. And according to Sydney, it sometimes even creates something entirely new. बाज़ औक़ात तो बिल्कुल कोई नई चीज़ ही तख्लीक कर देता है. So this imitation is very important. And then Sydney talks about types of poetry, and I hope you must have read this one is religious poetry, philosophical or informative poetry, and the right or true kind of poetry. So the third kind of poetry, according to Sydney, is very important. It is something where we have creativity. It is something there where we have creative impulse. Here we have something very special. So first, religious poetry, that is related to, of course, hymns, naat, elegies, like this, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नात, हमद, मरसिया वगैरह. ठीक है. सेकेंड इज फिलोसफिकल और इंफॉर्मेटिव पोइट्री. इट इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू इम्पार्ट नॉलेज.
ठीक है, जो कि नॉलेज को इम्पार्ट देने के करने स्प्रेड करने के लिए होती है. द थर्ड वन इज द पोइट्री यू विल फाइंड विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री, narrative poetry, epic poetry, and many other types of poetry, lyric, or there are many other uh, you know branch types in this particular kind of poetry. In the end, you can see that जो इसका हमारे पास कंक्लूजन जो निकाला गया वो ये है कि रिमेंबर क्रिटिसिज्म प्रॉपर्ली बिगिंस विद एरिस्टोटल्स द पोएटिक्स. When you study literary criticism, so you cannot start criticism before studying Aristotle. So you must study Aristotle's the Poetics. Though he was not an English critic, he was a Greek philosopher. But since he criticized, he defended poetry against his teachers अटैक, और उसके टीचर ने पोइट्री को अटैक क्यों किया था वही बताया था कि poets were not doing their job properly in that particular era. And as a since he gave he gave a concept of an ideal state as a philosopher, so in that ideal state he said that poets should not be allowed to enter. जिसको एरिस्टोटल ने इस में डिफेंड किया कि पोइट्स दिस इज नॉट पोइट्री की अहमियत क्या है, और उसने उस चीज़ों को उजागर किया. एंड डेफिनेटली डिफेंडेड पोइट्री अगेंस्ट द अटैक ऑफ हिज टीचर. Aristotle was a Greek philosopher. In the Poetics, he defends poetry against the attack of his teacher Plato. The Poets mainly deals with tragedy. The Poetics mainly deals with tragedy. Remember, Poetics ये जो आप पढ़ रहे हैं, it mainly deals with tragedy. इसमें आपको tragedy का जिक्र मिलेगा, right? And tragedy is a form of drama. And that time there was no prose, so definitely they used to have poetry as a medium, and poetry was used in the form tragedies were written in the form of poetry. Today we have prose. Then we have Sydney's Apology for Poesy. So here it discusses three very important topics जो आपके पास है. Replies to the charges leveled by Stephen Gosson, and his views on tragedy, comedy, and tragicomedy, and his definition of poetry and its types. This is how I've given you the revision of both these, और कंप्लीट रिवीजन दिया. अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए. अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस. सर. यस सर, आपने जो नोट्स हमें दिए हैं उसके अंदर जो रेफरेंसेस दिए हैं हमें लाजिम वही रेफरेंसेस लिखने हैं, यानी वो जो अगर कोटेशंस हैं तो वो लिखनी है और रेफरेंस भी देना है साथ, या फिर अगर हम बाहर से देना चाहें कोई रेफरेंस तो भी दे सकते हैं. देखिए, जो आपके कोटेशंस वहीं से होंगे ना, जो कोटेशंस आपके पास टेक्स्ट में वही इस्तेमाल कीजिएगा. मैंने जो आपको हैंड आउट दिए उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कोड भी करके दी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो. बल्कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट ही आपके पास जो आपको मैंने दिए ना, दिस इज ओरिजिनल टेक्स्ट, क्योंकि ये ट्रांसलेशन है. इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ पोएटिक्स, सो यू कैन गिव रेफरेंस आउट ऑफ इट. और वो मुश्किल भी नहीं है, आसान है, बिकॉज इट इज़ अ मॉडर्न ट्रांसलेशन, राइट. सो यू कैन गिव रेफरेंस आउट ऑफ माई हैंडआउट्स. बाहर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है. बिला वजह में परेशान होंगे आप लोग. जो मैंने आपको बताया सर, और अगर जी जी सर अगर हम कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस ना दें और डायरेक्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग हाँ, कॉन्सेप्ट्स. ये है अपनी अंडरस्टैंडिंग तो आप देंगे, लेकिन जब तक रेफरेंस नहीं देंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा. ओके रेफरेंस से सर, तो बात थैंक पता यू. चलेगी कि आपने क्या स्टडी की है. आप अपना तो बताएंगे, दिस इज हाउ यू हैव अंडरस्टूड, बट हाउ विल यू प्रूव इट दैट दिस इज व्हाट आई हैव गॉट इट फ्रॉम द टेक्स्ट. तो टेक्सचुअल रेफरेंस तो आपके जो है आंसर को जो है उसकी वर्थ बढ़ा देगा. यस सर, जस्टिफाई करेगा. ओके, थैंक जैसे यू सर. रिमेंबर मेरा जो जहन है वो ये है कि आई वुड लाइक टू गिव यू शॉर्ट आंसर्स, राइट, शॉर्ट क्वेश्चंस. सो 5 नंबर का एक होगा, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपके देखना चाहूँगा कि आप लोगों को समझ में कैसा आया. प्लॉट के बारे में पूछूंगा तो आप लोगों ने प्लॉट को डिफाइन करना होगा. अगर मैं पूछता हूँ, मतलब याद रखिएगा ये टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से आपसे मैं सवालात पूछूंगा, ठीक है. ये सवालात नहीं है, आप याद रखिएगा जहन में. समटाइम स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड थिंग्स, सो दे
do wrongly. So these are topics, and out of these topics you have to study these topics. So इन्हीं में से आपसे सवालात पूछे जाएंगे and you have to write answers. ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? देखें वैसे तो स्टूडेंट बहुत चंद एक बहुत बोल रहे होते हैं, लेकिन आप वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, आप क्यों नहीं पूछते? सर लेकिन जो नोट्स आपने प्रोवाइड किए वो बहुत ज्यादा लेंथी हैं। तो बेटा पढ़ना तो होगा ना आपको। लेकिन सर जो हमने समझा है आपके लेक्चर से वो हमें ज्यादा इजी लगता है समझने में, और कॉन्सेप्ट हमारा उससे ज्यादा क्लियर हुआ है। क्लियर हो गया ना, तो उसको आप देखेंगे तो उससे थोड़ा सा आपको थोड़ी सी आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है सर अगर जैसे 5 नंबर का आप सवाल देते हैं प्लॉट के ऊपर, तो प्लॉट के प्लॉट ऊपर के हम ऊपर अपना हाँ आंसर जब हम अपना उस पे लिखेंगे तो सर वो टेक्स्ट रेफरेंस जो जैसे अरिस्टोटल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो प्लॉट को क्या समझते हैं, वो तो एक पूरा पूरा पैराग्राफ है, तो सर तो वो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? आप उसको ब्रीफ कर लीजिएगा ना। मैं एक्चुअली आपको क्या कहेंगे उसे, थोड़ा उसको आप मुख्तसरन बयान कर दीजिएगा ना, जैसा मुख्तसर प्लॉट। सर मतलब जो हमें समझ में आ रहा है हम वो उसमें से हाँ निकाल के मतलब वही लिखें। मुख्तसर बयान कर दीजिएगा। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक छोटे से जुमले पर एक किताब भी लिखी जा सकती है, एक छोटे से जुमले पर एक पेज भी लिखा जा सकता है। अब ये लिखने वाले पर डिपेंड करता है, जो नौइयत उस लिहाज से, वट एवर सिचुएशन इज यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अभी मैं अगर आपको यही सवाल 5 को दे रहा हूँ, 5 नंबर का आपसे मैं कह रहा हूँ दूंगा, तो इसका मतलब आपने उस लिहाज से अपना जहन बनाओ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि जैसे प्लॉट के बारे में अगर मैं आपसे पूछूँ, जैसे उसमें बताया कि प्लॉट की एग्जाम जो है कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है और सिंपल प्लॉट होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्लॉट क्या होता है, आप ज़्यादा डिटेल में मत जाएं। कॉम्प्लेक्स सर प्लॉट क्या ये होता है ये उसमें सिडनीज एन अपॉलजी फॉर पोएट्री में सर इसके बाद लिखा है डिस्कस 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर कौन से 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक? यही है ना आपके पास। एक तो ये जो ऑब्जेक्शन वगैरह रेज किए हैं, इनके हवाले से आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्शन क्या आती है, उसको कैसा डिफेंड किया गया, और फिर उसके अलावा जो है आपके पास ये दूसरा जो है जिसमें वो अपने व्यूज़ देता है कि ट्रेजेडी कॉमेडी और ये ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, और थर्ड में पोइट्री को बताता है, पोइट्री क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या होती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आ जाती है तो आपने क्या करना होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ उनको मुख्तसरन लिखना होगा। देखिए किताब में तो डिटेल्स मिलेंगी आपको, हैंड आउट सर में एक तो जो हमने पोएट्री की टाइप्स पढ़ी वो सोनेट बलाद, सर वो क्या अलग हैं और इनके इनके बताए हुए टाइप्स अलग हैं? आपने कहाँ पढ़ी है? सर हमने 3rd सेमेस्टर में शायद पढ़ी थी कोई 11 या 12 टाइप्स हाँ तो वही पोएट्री की। वही तकरीबन एज, देखिए वो तो एक जनरल सी बात है ना। तो यहाँ पे एक राइटर आपको बता रहा है, और वो भी 500 साल पहले उसने बताया है। ठीक है, और वो जो आपने पढ़ी वो आज के मुताबिक होगी, तो आप उसको देख लें, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको कॉमन मिल जाएंगी। वही तकरीबन बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लिरिक और क्या कहेंगे उससे, नैरेटिव पोइट्री, एपिक पोइट्री, ये सब आपको मिलेंगे उसमें। सर इन्होंने 3 टाइप्स बताई है ना? ये तो 3 टाइप्स बताई, लेकिन आप देखें ना उन तीनों में थर्ड टाइप जो है उसके अंदर उसने मजीद उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइप 1 आपको पता है रिलीजियस पोइट्री, जिसमें आपके पास क्या आ जाता है, एलिजीज आ जाती हैं, हिम आ जाती है, और उसने बताया रिलीजियस पोइट्री का फंक्शन क्या है। देन सेकंड टाइप इज़ फिलोसफिकल पोइट्री। ठीक है, क्योंकि उस दौर में ये चीज़ें पोइट्री में ही के ज़िमरे में आती थी, प्रोज था नहीं उस दौर में इतना खास। ठीक है, थर्ड टाइप इज़ द न्यू काइंड ऑफ पोइट्री, हियर यू विल फाइंड क्रिएटिव थिंग्स इन मेनी अदर थिंग्स। सो थर्ड इज़ अ रियल काइंड ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू हिम। तो आप उसको मुख्तसर बता दीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर 20 नंबर का आपको दिया है तो फिर आपने इसकी डिटेल्स बतानी होंगी। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि द टीचर वांट्स टू सी हाउ यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स, तो आप उसे अपने अल्फाजों में जो आपको समझ आया बता दीजिएगा, एक छोटे थोड़ा सा रेफरेंस देके, बस दैट्स ऑल। 1.5 सर पेज। मतलब हमें मार्क्स देख के आंसर लिखना है ना कि वो जी कितनी क्वांटिटी या क्वालिटी मांग डेफिनेटली रहा है? यू हैव टू सी। देखें आप कहीं भी जाएंगे, टाइम लिमिट आपके पास होगा और आपको बाकायदा बताया जाएगा कि ये चीज़ें होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट थिंग यू हैव टू राइट योर आंसर। आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे तो अपनी मर्जी से थोड़ी लिखेंगे, आपने उस जर्नल के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट आंसर से मुराद है कि ये तो राइट 1.5 पेज, और 1.5 पेज ज़्यादा लिखिएगा, 1.5 से 2 पेज से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1.5 पेज में कितना आएगा आपको अंदाजा, 1.5 से 2 पेजेस में कितना आएगा? यही इसी का जवाब अगर आपको 20 नंबर का सवाल दिया जाएगा तो आपको 6-7 पेजेस करने होते हैं कम से कम, क्योंकि इससे कम में ये होगा नहीं।
इज दिस क्लियर? तो अभी भी मैं सर आप हमसे एरिस्टोटल की हिस्ट्री और उसकी बायोग्राफी भी पूछ सकते हैं, नहीं सिडनी की भी पूछ नो सकते हैं। no, I will not ask anything related to history, biography and all such things. These are only for your information. मैं उसके अलावा कुछ नहीं पूछ, उसकी बायोग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उस एज के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। सिर्फ यही टॉपिक्स है जो आपको स्टडी करनी होंगी प्रॉपरली। प्लॉट के बारे में, ट्रेजेडी को की डेफिनेशन को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, प्लॉट को देख लीजिएगा, और ये द पोएटिक्स में ना, और उसमें देख लीजिएगा उसको क्या कहते हैं, जो इसके एलिमेंट्स है 6 एलिमेंट्स, उसको देख लीजिएगा। और क्या था उसमें, इमिटेशन, थ्योरी ऑफ इमिटेशन को देख लीजिएगा। सिडनी में आप देख लीजिएगा ये जो आपको 3 टॉपिक्स बताएं, ये टोटल 6-7 टॉपिक्स बनते हैं, इनको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह इनमें से आपके पास आएंगे। सर 12 टॉपिक्स बनती, 12 टोटल 12 टॉपिक, तो इसके अंदर सारी चीजें वो तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मिसाल आप ट्रेजेडी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ऑलरेडी प्लॉट इसके अंदर आ रहा है, ऑलरेडी इसके अंदर आपके पास कथारसिस भी आ रहा है एलिमेंट्स ऑलरेडी, आएंगे। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी आ रही है। तो आप जब एक को पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको पढ़ना पड़ेगा आपको, तो एक को पढ़ने से सबको आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। ट्रेजेडी के अंदर ही सब आ रही है ना, प्लॉट भी आ रहा है उसी के अंदर, उसी के अंदर कथारसिस भी आ रहा है, उसी के अंदर आपके पास क्या कहते हैं, इमिटेशन भी आ रहा है। ठीक है, फिर जब आप उसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा, जब आप उसको, उनको आपने वैसे ही पढ़ना होगा, थोड़ा सा उनको देख लीजिएगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या, इमिटेशन क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, कथारसिस क्या होता है। ठीक है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है उसने दी है, प्लॉट की अहमियत क्या है। ठीक है, प्लॉट हमें कितना स्टेफन है, गॉसन के जो ऑब्जेक्शंस है वो भी पढ़ने होंगे, और फिर उसके हाँ बाद हमें ऑब्जेक्शन क्या सिडनी है, के डिफेंस। हाँ उसके ऑब्जेक्शन वगैरह उसने क्या क्या लगाए थे और उसको जवाब कैसे दिया गया, ये भी आपने इसको भी देखना है। ठीक है, फिर उसने जैसा ड्रामा इन चीज़ों को डिफाइन किया मुख्तसर, उसमें देख लीजिएगा आप उससे। ठीक है, सर ट्रेजेडी सीरियस है, कॉमेडी एक अलग चीज है, फिर इसको सर सिडनी ने ट्रेजिक ठीक कॉमेडी है, दोनों जो में तो एक चीज नाम कॉमन है दिया ना, दे बोथ आर इमिटेशन। दोनों में एक चीज कॉमन है, बहुत बहुत वो कॉमन चीज क्या है, दे बोथ आर इमिटेशन। है। ठीक है, तो एक इमिटेशन क्या है, ऑफ सीरियस एक्शन, और दूसरी इमिटेशन किस चीज का है, ऑफ कॉमन एरर्स। ये थिंक कितनी आसानी से हमें समझ आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने बता रहा होगा, कॉमेडी इज द एरर ऑफ, कॉमेडी इज द imitation of common errors, tragedy is imitation of serious action which should be complete. And then what is comic tragedy, sir? What is tragic comedy? So tragic comedy is a mixture of both these elements in one play, where we have tragedy and comedy both together. जैसे शेक्सपियर के प्ले है। Sir, when we talk about satire, sir, Sir, कोई इसकी ऐसी example बात कॉमिक, नहीं सटायर तो अलग चीज है ना, वो तो है ही नहीं अभी हमारे पास ना, ये है कॉमिक एलिमेंट। जैसे शेक्सपियर का प्ले आपके पास है किंग लियर, नाम सुना है, पढ़ा होगा आप लोगों ने? ऑडोपस वाला? नहीं, किंग लियर आपने पढ़ा होगा, वो सोफोक्लीज का है। तो जब ट्रेजेडी के अंदर कॉमिक एलिमेंट, कॉमेडी आ जाती है, यानी कि बहुत से आपको सीरियस प्लेस मिलेंगे जिसके अंदर कॉमेडी का भी एलिमेंट होता है, कॉमेडी भी होती है, तो वो कहलाता है ट्रेजिक कॉमेडी, यानी कि बोथ दीज एलिमेंट्स आर टुगेदर, राइट। तो ये इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जो थे इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, एंड शेक्सपियर इज अ ग्रेट यू कैन से इनोवेटर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्ले। लेकिन ग्रीक ट्रेजेडी में सिर्फ और सिर्फ या तो ट्रेजेडी प्लेस में या तो सिर्फ ट्रेजेडी होगी या कॉमेडी होगी, दे डोंट मिक्स अप बोथ टुगेदर। ओके, यस सर। इट्स वेरी सिंपल, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा बस। और 6-7 टॉपिक्स और वो भी सब एक दूसरे से लिंक है, ऐसा नहीं कि अलग है। जैसे आप ट्रेजेडी पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है सभी टॉपिक्स उसके बाकी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, देखेंगे आप। ठीक है, और ये कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, डोंट गो एट लेंथ, डिटेल में मत जाएगा। सिमिलरली व्हेन यू स्टडी सिडनीज, डेफिनेटली यू विल स्टडी दिस थिंग, और उसमें तो कुछ चीज़ें तो वैसे ही आपको पता चल जाएंगी। सिडनी ने पोएट्री को डिफाइन किया हुआ तो आपको जनरली पता है क्या है पोएट्री की एग्जाम, आपको पता है वो तकरीबन एक जैसा ही है। ओके, सो देयर इज नथिंग। सर इमिटेशन की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी? इमिटेशन वही है एक्चुअली, इमिटेट मींस टू कॉपी समथिंग, but here Aristotle disagrees with Plato. He said that to copy something, to create something